I wanted to start off with something different. Conference के नाम में भी urban resilience था. One of the earliest presentations also started with the point कि हमें बहुत शौक है कराची को resilient city कहने का. But today in the climate changed world, resilience उसको कहेंगे, urban resilience उसको कहेंगे when a city is able to cope with and deal with the effects of climate change. जिस तरह के disasters हम face कर रहे हैं, जब cities उनको cope कर पाती हैं, तो वो उनको resilient cities कहा जाता है. So we as Karachi are definitely not a resilient city. We want to be one, but because of the kind of disasters that we face, we're excessively vulnerable और हम उनसे cope नहीं कर पा रहे हैं. The two disasters that are mentioned here, there's heat and flooding. दोनों disasters को भी समझने की ज़रूरत है. I think just yesterday or probably today morning there was an article in Dawn by Dr. Naman Ahmed जिसमें वो यही flooding की बात कर रहे थे that we are anticipating urban flooding to happen again and we constantly talk about the encroachments कि कच्ची आबादियों की वजह से होती है और वो drains को encroach कर देते हैं. But there's a lot of other commercial private institutions as well that are encroaching on drainage areas, on the natural drainage patterns or channels जो चल रहे हैं. There's a commercial bank on IH Chandigarh Road जिसकी parking जो है वो उसी drain के ऊपर बनी हुई है. There's some other, the article also mentioned government institutions that have their establishments in the right of way of the drain. So it's a little unfair for us to only blame the Kachi Abadis. There's a lot of other stakeholders who are involved in this entire process of encroachment और उन सब को consider करते हुए ही इन problems को deal किया जा सकता है. Now, when it comes to flooding, it's a kind of a disaster that needs preparedness right before the event, during the event, and right after the event. वो एक event-based disaster है. हीट एक डिफरेंट किस्म का डिजास्टर है. हम सिर्फ हीट वेव की बात कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं, बट दीज लास्ट फ्यू वीक्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इज दैट नॉट एवरी डे वाज अ हीट वेव. दैट्स नॉट व्हाट द पीएमडी डिक्लेयर्ड बिकॉज देयर डेफिनेशंस डिफर. लेकिन हमें तो गर्मी लग रही थी. हीट इज समथिंग दैट इज नाउ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. वी हैव लॉन्गर समर्स. हम सिर्फ हीट वेव्स को कंसिडर करते हुए डिजास्टर की प्लानिंग नहीं कर सकते. हमें हीट इन इटसेल्फ को एक डिजास्टर कंसिडर करना होगा. जो एक्सेसिव गर्मी है जो हम फेस करेंगे, we have a lot of other infrastructural issues. So how are we going to be able to live in those overheated cities is something we need to consider. Heat wave एक event की तरह आता है, एक दो दिन होता है, कैंप लगते हैं रोड पे, फिर हटा दिए जाते हैं. That's not the way that we can deal with this disaster of heat. So that's one thing. दूसरा ये है, as far as preparedness is concerned, as Afia mentioned, हमें context considerate होना पड़ेगा. There's a very common solution that kind of revolves around, and I come from an architectural background, कि जी green roofs कर दें. Green roofs is not easy to maintain. Green roofs requires a lot of water. It requires certain specific structural requirements. और आप, when 62% of the city is Kachi Abadis who rely on the fact that they're going to incrementally build their houses vertically, आप उनसे नहीं expect कर सकते कि वो green roofs जो है वो establish करेंगे. There's other better contextually relevant solutions. School roofs होती हैं. एक ज़माने में चूना लगाया जाता था ताकि वो कम से कम heat को absorb करे. हमें low cost solutions की तरफ जाने की ज़रूरत है. When we think of expensive solutions and we look at northern cities, we try to borrow solutions that are not really applicable to our context to begin with. तो पहली तो ये चीज़ आ जाती है. But there's obviously some learning that we can take, and that brings me to the master plans वाली बात. There's some considerations that are being taken in master plans of cities now जिससे हम देख सकते हैं. I don't know how many of you are aware, but अभी एक कराची का climate action plan आने वाला है, which is something that the UNDP, the NED and the government has been working on. And that does actually revolve around heat and floods in certain ways, क्योंकि हमारे पिछले किसी master plan में इन चीज़ों को consider नहीं किया गया था. But what can we learn? For instance, वियतनाम का जो नया master plan आया था, they stipulated a per person greenery requirement कि उनकी current greenery कितनी है लेकिन per person कितनी होनी चाहिए. And that raises the question that the kind of greenery and the kind of greening initiatives जो हम billion tree tsunamis देखते हैं do not benefit the people living in the cities, right? आपकी proximity में वो दरख्त नहीं उग रहा जिसकी जो है वो चर्चा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी SDG ratings improve हो रही हैं. We did a remote sensing study and we found out that in the last 20 years, अगर हम सिर्फ कराची के urban area को consider करें जो generally आपके district central, south, east, west, barring Malir, so we're not including agricultural land, लेकिन जो urban areas है उसमें urban green spaces में 40% decline आया है.
So we're talking about the greenery with which we are in constant contact with. हमारा everyday experience, अब अगर आप बाहर हैं, आप सड़क पे हैं, आप shade ढूंढेंगे, your immediate experience needs to be improved. That's the kind of greenery we need to work on. So in the Vietnam Master Plan, they're basically keeping a provision for per person greenery. There's the Master Plan of Hong Kong that says कि wind corridors के रास्ते में आप high rise नहीं बनाएंगे. So they're not saying कि कभी high rise नहीं बनानी, and you get those objections कि oh, if you don't build high rises, how do we deal with the densities that are there? कहाँ high rise बननी चाहिए is what we can consider. तो हवा के रुख में high buildings नहीं बनेंगी, so that they do not block the wind of the buildings that are behind it. That's something that's being worked on. There's an excellent strategy that Spain developed, जिसमें urban heat island शहर में कहाँ कहाँ हो रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई किया गया एंड फिर वहां पे दरख्त उगाए गए. सो विच आर द मोस्ट वनरेबल नीड्स. कराची इतना बड़ा है, पूरे कराची की नीड्स भी सेम नहीं है. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से एरिया ज्यादा हीट अप होते हैं, कौन सो में ज्यादा गर्मी महसूस होती है, एंड वेयर द इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड. आपको हैरानगी होगी कि वी स्टार्टेड 1993 एक लैंडफिल साइट इन कराची, जाम चाकरो पे, which was 500 acres. एक और है गोन पास पे, बिल्कुल दोनों की जो प्रॉक्सिमिटी है विद हब रिवर इस ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है इन लेंथ. जाम चाकरो और फिर हार्डी को 500 मीटर दूर है गोन पास. पूरे शहर का कचरा जो आज 10,000 टन पर डे है, कि ज़माने में वो 5,000-5,500 था, क्योंकि बाकी सारा कचरा नालों में जाता था. Now they've increased the efficiency. They've outsourced the operations of each and every day. So instead of DMCs, now the private companies are doing it. So obviously there is interest, there is investment, there is money coming in, so they have improved the efficiency as well. वहाँ पे आज 300 एकड़ ज़मीन का 30 साल पुराना 70 फीट का डंप है. आप अगर किसी उधर एक पहाड़ी के कोने पे खड़े हो जाओ शाम दोपहर के टाइम, इस वक्त आप नीचे ना देखें, सामने हवा में देखें, तो आपको लेयरिंग नजर आएगी. दैट लेयर इज मीथेन गैस इमिशन. वो मीथेन गैस इमिशन जो वहाँ से होती है, वो तकरीबन जो मैंने असेसमेंट की है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन इक्वलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम है. पर एनम की बात कर रहा हूँ. ये दिस मीथेन गैस इमिशन, और जो दुनिया के अंदर ट्रैप होती है, यूज होती है, उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया. इवन इफ कन्वर्ट नहीं भी किया जाता तो फ्लेयर अप किया जाता है. वाई वी फ्लेयर इट अप? बिकॉज कि वो मीथेन से कन्वर्ट होकर कार्बन बन जाता है, तो उसका 30 टाइम्स इफेक्ट जो है एनवायरमेंट में कम हो जाता है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. सो द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच वी वर डूइंग, कि हमने कराची के अंदर देयर वाज नो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन. कॉन्सेप्ट ही नहीं था. और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बेसिकली है कि घरों से अगर कोई कचरा उठाता भी है तो 60 किलोमीटर दूर लेके नहीं जाएगा. तो दे नीड इंटरमीडिएट प्लेस जो कवर्ड हो, जिसमें सेग्रीगेशन हो, जिसमें सॉर्टिंग हो, जिसमें कॉम्पैक्शन हो. फिर शाम के टाइम या जिस वक्त उनको ट्रैफिक आवर्स मिलते हैं, देन दे ट्रांसपोर्ट इट टू लैंडफिल साइट. So we started building and we have constructed, you must have seen the pictures as well. We have started constructing 4 garbage transfer stations with total capacity of 7,500 tons in a day, and by June inshallah next we'll be inaugurating all 4 of them to work in Karachi. लेकिन साथ साथ important issue ये है कि landfill site. अब इंजीनियर लैंडफिल साइट होती क्या है, मेरे ख्याल में मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, अकेडमी में मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी डिबेट हुई सरोज मोदी के साथ. मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने खुद मास्टर्स इन्वायरमेंट में किया है, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि ये कोई साइंस है. म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कोई साइंस है. दुनिया के अंदर यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं होती. यहाँ सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं ये सर्टिफाई करूँ कि मैं इंडिविजुअल, मैं सर्टिफाइड मोल जो लैंडफिल साइट मैनेजमेंट होती है उसका वो मतलब कि एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ. फ्रंट एंड कलेक्शन का मैं एक्सपर्ट नहीं. सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एनवायरमेंटल डीन हमारे बोर्ड के मेंबर मैंने ज़बरदस्ती उन्हें बनाया. फिर जो आपके वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी, इवन द डीन ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट साइंसेस, उनको हमने बनाया. दे हैड नो आइडिया एट ऑल. इसलिए नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट सब्जेक्ट विच इज़ मार्केटेबल टुमारो. स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको सब्जेक्ट का पता नहीं था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे EIA लिखना, ESIA लिखना, फला लिखना, कि रिपोर्ट कैसे बनती हैं, इस सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन अब शुरू हुई. नाउ वी स्टार्टेड डिबेटिंग. हमने यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको समझाना शुरू किया. So this is the first time in entire Pakistan that engineered landfill site is being constructed, and that means that we'll be not polluting the underground water. That means we'll be trapping the gases. That means we'll be using the gas, and we confidently in one landfill site can generate easily 25 megawatts of the energy with that gas, methane gas being आज की तारीख में जो हवा में रुलाना जाती है, we can generate. पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कोलैबोरेशन है एनवायरनमेंट के हवाले से और इस तरह के दूसरे जो नॉलेज शेयरिंग के अंदर.
अहमदाबाद हीट वेव का प्लान जो था वो पाकिस्तान के 2 कंसल्टेंट्स के मदद से बनाया गया था, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेटवर्क। और उसी के बाद जब वो कराची में हीट वेव हुई तो उन्हीं लोगों ने मिलके ये बनाया। लेकिन मैंने उसको पिछले कितने साल पर 2015 हो गए, अब हम 24 में हैं, 2-3 मरतबा इस तरह से कराची में कोई हीट वेव की हमने बात सुनी, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आई। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने 1122 का ट्रियाज का जो एक तरीका बताया है, तकरीबन उसमें उसी तरह से उसके डिफरेंट सेगमेंटेशंस थे कि किस तरीके से आप किस वक्त कॉल देंगे और कौन से इदारे आपके फाल होंगे उस कॉल की रिस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, 2015 में तो उतने इदारे भी नहीं थे, ना उतने फाल इदारे थे। जितने लोग आपके पहले पैनल में बैठे हुए थे वो 2015 में उनके वो इदारे एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो वी शुड हैव बीन बेटर इक्विप्ड टू डील विद इट नाउ। अब मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस देख रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, शहर के बारे में भी, जाहिर है जो घर पे लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी उनकी खैरियत मालूम कर रही हूँ कि उनका क्या क्या। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो उसमें एक तो ये होता है कि एवरी हॉट डे डज नॉट मीन ए हीट वेव। मेट के अंदर हीट वेव की एक खास डेफिनेशन है कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली एक हफ्ते तक उससे ऊपर आपके टेम्परेचर होगा तो वो हीट वेव कहलाएगी। सो हॉट डेज और हीट वेव्स का फर्क हम जब नहीं समझते, और इसमें जरार मैं आपकी और अपनी फ्रेटर्निटी को भी मुर्द इल्जाम ठहराऊंगी कि हम भी हीट वेव का ढंढोरा पीटना शुरू करते हैं, तो बड़ी हद तक ये शेराया वाली बात हो गई है कि जब एक्चुअल हीट वेव आती है तो हम वो तैयारी उसकी नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले हम उस तैयारी में एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। वो सड़क के कोनों पे तंबू लग जाते हैं, वहां पे टब रखा होता है जिसके अंदर बर्फ वाला पानी दिया जाता है, विच इज दी एब्सोल्यूट नो नो। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए जो आपको कभी ये कहें कि आप इतनी गर्मी में इतना चिल्ड पानी पिए। अच्छा, दूसरा, वहां लोग जो वहां रुक रहे होते हैं जिनको आप पानी की बोतलें हैंड ओवर की जाती हैं, और उसमें हुकूमत के भी कैंप्स होते हैं और दूसरे फलाही इदारे, कराची इट्स अ लार्ज हार्ट पीपल एंड दे आर ऑलवेज आउट देयर टू हेल्प। और वो उनकी नेक नियति के ऊपर कोई इसमें मैं वो कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि दैट्स अ गिवन। लेकिन उनको भी गाइडेंस चाहिए। वो उस तरह के चिल्ड पानी और जो स्प्रे है, आप देखिए, आप लोगों की आगाही का अब तक ये आलम है कि जो लोग वहां पे खड़े होते हैं जिनके ऊपर पुलिस वाले भी स्प्रे कर रहे होते हैं और ये कैंप के लोग भी, हार्डली एनी ऑफ देम हैव देयर हेड्स कवर्ड। जो बेसिक आपकी जो छोटी सी छोटी बातें, जो कॉमन सेंसिकल बातें हैं, मे बी बिकॉज इट्स सो अनकॉमन नाउ कि आप हमारे यहाँ लोग सर कवर करके नहीं चलते, हमारे लोग कोई एक गीला तौलिया या टोपी पहन के नहीं चलते, हमारे मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट उस में नहीं पहनते। वो एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, आपके लिए बचाव का जरिया भी है, लेकिन ये गर्मी है तो हेलमेट भी उतार देते हैं। So, there are multiple factors, but we need to understand the science and then we need to understand the response. और वो हम नहीं कर रहे।